Bismillahirrahmanirrahim. I will continue with the uh, discussion on the midterm syllabus from chapter 4. Chapter 3 तक last time discuss कर लिया था मैंने. I'll not go into too much detail in this revision for or review for midterm examination, but there are few things that you should focus on. Of course, you should need to know how and when a set of vectors becomes a vector space. मैंने तीन स्टेप्स मेजर डिफाइन किए थे कि एक आपके पास सेट ऑफ वेक्टर्स होना चाहिए, एक सेट ऑफ स्केलर्स होना चाहिए, वेक्टर्स के अंदर एक एडिशन डिफाइन होनी चाहिए, और फिर आपके पास एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए कि जिस तरह से एक स्केलर और एक वेक्टर लिया जाए, स्केलर के सेट से स्केलर, वेक्टर के सेट से वेक्टर, उनका मल्टीपल जो है वो एक वेक्टर हो. तो पहला स्टेप दो सेट्स हैं, सेट ऑफ वेक्टर्स और सेट ऑफ स्केलर्स. दूसरा स्टेप एक वेक्टर एडिशन है और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है. और तीसरा स्टेप ये है कि फिर whatever type of addition and scalar multiplication you have, under those operations, these 10 axioms should be satisfied by the vectors and scalars together. Then a set of vectors is a vector space. I was telling last time that if I ask you to show that a given set under a given addition and scalar multiplication operation is a vector space or not, it's a lengthy business. चाहे मैं R2 को कहूँ, R3 को कहूँ या Rn को कहूँ, it will take a long process to verify all these. So instead we focused more on कि भाई एक सेट है और हम कुछ अनयूजुअल बाइनरी ऑपरेशन दे देते हैं, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, and you verify whether under these operations the set of vectors is a vector space or not. और उसमें आसानी ये होती है कि अगर आपने प्रैक्टिस किए हुए क्वेश्चंस तो आपको ये याद रह जाता है या ये आपको समझ में आ जाता है कि अंडर दिस पर्टिकुलर अनयूजुअल एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड और अनयूजुअल स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इनमें से कौन सा एक्सियम जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता. मोर इम्पॉर्टेंट इज एंड आई से मोर इम्पॉर्टेंट कि आपको वेक्टर स्पेस दिया हुआ है और एक का सबसेट दिया हुआ है. एक वेक्टर स्पेस है, एक सबसेट है, और आपने ये साबित करना है कि ये सबसेट जो है ये खुद वेक्टर स्पेस है कि नहीं. इन दैट केस वी कॉल इट अ सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस गिवन, और उसकी दो कंडीशन हैं. तो इफ आई कंसीडर दिस कि भाई मेरे पास सॉरी माई है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? I never asked to read it out loud. Okay, I was talking about कि एक हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स है, एक हमारे पास स्केलर्स का सेट है, और हमारे पास एक एडिशन है यहाँ पे, तो u plus v belongs to v for all uv belongs to v, और alpha belongs to f and u belongs to v. Alpha u should belongs to v. कोई सबसेट नॉन एम्प्टी इसका is a subspace if for every w1 w2 belonging to the subset w1 plus w2 is also in the subset. Any subset is closed under addition, and for all alpha belongs to the field and vector belongs to the subset,
alpha u, alpha w is also in the subset. इसमें हमने एक कंडीशन और डिस्कस कर ली थी कि जितने भी सब स्पेसेस हैं उन सब में एक कॉमन वेक्टर होता है और वो वेक्टर है जीरो वेक्टर. तो समटाइम्स इफ यू फाइंड आउट दैट जीरो वेक्टर सबसेट में नहीं है तो वहीं फैसला हो जाता है कि ये सबसेट जो है सब स्पेस नहीं. So subspace is and 4.2 is more important than 4.1. और 4.1 में भी इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कि अनयूजुअल बाइनरी ऑपरेशन जो हैं एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन उनके सवालों पे आप ज़्यादा गौर कीजिएगा. For the rest of the 2-3 articles, starting from linear independence, coordinate and basis and dimension, इन तीन आर्टिकल्स में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं? You need to know that अगर आपके पास V एक वेक्टर स्पेस है and you are given a subset of V, then S may be containing vectors V1, V2, Vr. Under what condition S is linearly independent? And for that you need to solve this equation alpha 1 V1, alpha 2 V2 up to alpha R Vr is equal to zero vector. Solve it. If you get trivial solution only, implies linear independence, and non-trivial solution for this implies linear dependence. एक चीज. Then span of S क्या है? And span of S का मतलब ये है कि एक ऐसा set which contains all possible linear combination of the given vectors in the set S. Alpha I belongs to the field and the Vi belongs to S. This spanning set, given vectors ka set of all linear combination may be a subset, a proper subset of V, or this span of S may be completely V. So you need to understand this idea and you need to know how to verify this. Spanning के लिए हम ये करते हैं कि alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 plus alpha R Vr is equal to some V belongs to the vector space. अगर R3 में है तो ये x by z होता है. And instead of having homogeneous system equation, we now have a non-homogeneous equation, and इसको हम solve करते हैं, and that leads to the fact कि जो spanning set है वो पूरा V है या उसका कोई part है. अगर V I am talking about say R3, तो या तो पूरा R3 जनरेट हो रहा है इनसे, इन वेक्टर्स से, यानी सारे कॉम्बिनेशन. इसको सॉल्व करेंगे तो यूनिक सोल्यूशन आएगा, तो पूरा सेट स्पैन होगा. अगर यूनिक सोल्यूशन नहीं आता, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन आते हैं, तो दैट विल बी नॉट द होल R3 बट अ पार्ट ऑफ दैट, एक प्लेन या एक लाइन. So these are the things which you must focus on. Linear independence check करना, linear dependence check करना, spanning the whole space or only part of that, इस तरह के जो सवाल आते हैं उनको उन पर फोकस करना. और then if I conclude this discussion कि एक set जो है S is linearly independent and span of S
is complete vector space, and this means S is a basis of V, and this is not standard basis. We talked about standard basis last time. कि standard basis क्या होते हैं? We have been talking about standard basis a lot of time. तो हमें अगर एक किसी वेक्टर स्पेस का एक सबसेट मिले एस जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और पूरी वेक्टर स्पेस को स्पैन करता हो, तो फिर हम ऐसे सेट को बेसिस सेट कहते हैं वेक्टर स्पेस का, और ऐसे कई बेसिस सेट हो सकते हैं। जब हम किसी वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स किसी बेसिस में निकालते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि आप अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा n r निकाल रहे हैं सच दैट वेक्टर v इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 v1 प्लस अल्फ़ा 2 v2 प्लस अल्फ़ा r vr। ये जो इक्वेशन बनेगी फॉर ए गिवन वेक्टर v, उसको सॉल्व करें और अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा r की वैल्यूज निकालें। तो ये जो कोफिशिएंट्स आएंगे इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिस वेक्टर्स किसी भी वेक्टर के, वो उस वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। So you should be clear about what's the meaning of coordinates of a vector. तो और फोकस है कि हम देखें कि एक वेक्टर स्पेस में हमें एक सेट ऑफ वेक्टर्स दिया हुआ है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है, इसको हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए, कैसे मालूम करें। और स्पैन उसका क्या है, यानी गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स जो हमने किसी वेक्टर स्पेस में सेलेक्ट किए हैं, उसका स्पैनिंग सेट जो है वो पूरी वेक्टर स्पेस है या उसका कोई सबसेट है। अगर बिग वेक्टर स्पेस हमारे पास R5 है, तो अब गिवन वेक्टर्स जो हैं वो यस हमने इस तरह की बातें भी नोट डाउन की कि अगर आई एम टॉकिंग अबाउट R2, तो जो बेसिस सेट है दैट कंटेन्स two linearly independent vectors. एक वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकता है लेकिन R2 को स्पैन नहीं कर सकता। R3 में बेसिस कंटेन्स 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। R3 में 2 वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं लेकिन वो पूरे R3 को स्पैन नहीं करेंगे। एक वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकता है लेकिन R3 को स्पैन नहीं कर सकता। इसी तरह अगर आप R2 में 3 वेक्टर्स ले लें, they will not be linearly independent. R3 में 4 या 5 या 6 वेक्टर्स ले लें तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। हो सकता है R2 में तुमने जो 3 वेक्टर्स लिए हैं उसका स्पैन जो है वो पूरा R2 हो, लेकिन 3 वेक्टर्स जो हैं वो बेसिस सिर्फ उस वक्त बनेंगे जब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। लेकिन R2 में 2 वेक्टर्स तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं लेकिन 3 नहीं हो सकते। सो हमने while defining basis set हम इस स्टेज पे भी पहुंचे थे कि चूंकि किसी भी वेक्टर स्पेस के कई बेसिस हो सकते हैं, तो हर बेसिस सेट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा और पूरे वेक्टर स्पेस को स्पैन करेगा। तो डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस जो है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर्स इन अ बेसिस सेट। तो इन चीज़ों पे हमें फोकस करना है। और आप ये नोट करें कि जब मैं लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक कर रहा हूँ तो भी मैं एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ जो कि होमोजेनियस है। जब मैं किसी वेक्टर किसी सेट ऑफ वेक्टर्स का स्पैनिंग सेट निकाल रहा हूँ तो वो नॉन होमोजेनियस है, इसमें राइट साइड कांस्टेंट जो है वो x by z के फॉर्म में है। So I'm solving the non-homogeneous system equation. So when I am considering a spanning set, I'm solving system equation. When I'm considering linear independence, I'm solving the system equation. Linear independence में I keep on insisting कि हम
सिस्टम इक्वेशन सॉल्व करें, कौन सी वाली, ये वाली। अगर तो आपके पास 4 वेक्टर्स हैं जिसके 4 कंपोनेंट हैं, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर होगा, तो उस सूरत में तुम डिटर्मिनेंट पे भी डिपेंड कर सकते हो। लेकिन जनरल मेथड जो है वो ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है। इसलिए हो सकता है कि R4 में मैं तुम्हें 3 वेक्टर्स दे दूं, अब तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बनेगा। तो 3 वेक्टर्स R4 में लीनियर इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, तुम्हें इसी इक्वेशन नॉन होमोजेनियस से रिजल्ट निकालना होगा। So linear independence and dependence, spanning sets, coordinates of a vector, and once we talk about coordinates of vectors, uh, we also explore the situation where we transform from uh, vectors dependent in one basis to another basis, and that was the case in change of basis. So you have different bases. तो एक बेसिस सेट से दूसरे बेसिस सेट में ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसके लिए हम एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स डेवलप करते हैं। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कोर्स। कम से कम R2 में इट इज़ इम्पोर्टेंट। और फिर ट्रांजिशन मैट्रिक्स किस तरह से निकाला जाता है वो मैंने तफसील से डिस्कस किया। टू एग्जाम्पल, मैंने अपने किताब की शॉर्ट एग्जाम्पल कंसीडर की होगी या कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन कंसीडर किया होगा, और ये ऑब्जर्व किया था कि ट्रांजिशन मैट्रिक्स वंस वी हैव फाउंड a matrix that transforms vector from basis a b to b prime और b prime to b, सॉरी, ये b prime से b में जा रहा है। तो इसका जो इस ट्रांजिशन मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होगा, that will take vectors from being represented in b to being represented in b prime. Invertibility of the transition matrix that I was talking about. तो जब भी ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकालें आप बोथ वेज, आपको ये देखना होगा कि ट्रांजिशन मैट्रिक्स जो आए हैं दो आपके पास, बी प्राइम टू बी और बी टू बी प्राइम, ये इन्वर्सेस हैं एक दूसरे के। A more efficient method of getting the transition matrix is that कि आपको जो बेसिस वेक्टर्स दिए हुए हैं उनसे, एग्जाम्पल मेरे पास बेसिस वेक्टर्स दिए हुए हैं 1 2 1 2 minus 1 2 3 0 4, ये फर्ज कीजिए बी है, और 1 1 0 0 1 1 एंड 1 0 1, ये फर्ज करो बी प्राइम। तो अब मुझे ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकालना है, तो मैं क्या करूं, बी के वेक्टर्स को एक कॉलम में रखूं, और इसको ले जाऊं रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में। अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं तो एट दी एंड रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म जो है वो, ये बी का जो पार्ट है ये आइडेंटिटी हो जाएगा, और यहाँ जो कुछ भी आएगा दैट विल बी द ट्रांजिशन मैट्रिक्स। और इन्वर्स निकालना है तो ये बी प्राइम को पहले लिख लें और बी को बाद में लिख लें, और फिर रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म लें। जब बी प्राइम रिड्यूस हो जाएगा आइडेंटिटी में, तो यहाँ पे आपके पास दूसरा ट्रांजिशन मैट्रिक्स आ जाएगा। सो दिस इज अ वे ऑफ obtaining transition matrices. One of the most important part of this chapter is every matrix is associated, has associated with it 3 spaces: row space, column space, and null space.
A brief reminder is that whenever you have a row space is spanned by linearly independent rows of A. Column space is spanned by what? Linearly independent columns of A. Whereas the third space, null space, is the solution space of the corresponding homogeneous system. तो मैं अगर आपको कहूँ कि आप रो स्पेस निकालें किसी भी मैट्रिक्स की, तो आप रो इक्रान फॉर्म मालूम करें एक ही, और उसमें आप देखें कि जो ए मैट्रिक्स है उसके फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स जो है ए आई जे 4/3 है, तो जो रो वेक्टर्स हैं वो किस टाइप के होंगे? द रो वेक्टर मे बी ऑफ दिस टाइप 1 5 2 -1. वुड इट बी? क्या इसके रो में 3 एलिमेंट्स होंगे? थ्री एलिमेंट्स होंगे ना? कितने कॉलम्स हैं? 3. तो एक रो में 4 एलिमेंट्स कैसे होंगे? वही मैं कह रही हूँ, 3 एलिमेंट्स होंगे ना? 3 एलिमेंट्स होंगे. सो ये मैंने, तो 3 एलिमेंट्स होंगे. तो जब आप इसको रिड्यूस इक्लान फॉर्म में लाएंगे, सॉरी इक्लान फॉर्म में लाएंगे, 4 रोज हैं, तो कितनी रोज बचती हैं? एटलीस्ट एक रो तो बचेगी, 2 भी बच सकती हैं. इफ ओनली 1 रो सर्वाइव, अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट 1 रो है, इट मीन्स रो स्पेस जो है वो 1 डायमेंशनल है. अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट 2 रोज आती हैं, इसका मतलब रो स्पेस जो है वो 2 डायमेंशनल है. लीनियर इंडिपेंडेंट एक रो के आने का मतलब ये कि बाकी सारी रोज 0 हो गई. लीनियर इंडिपेंडेंट 2 रोज आने का मतलब बाकी सारी 0 हो गई. इस केस में जो रो बची उसी से जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे दैट विल फॉर्म द रो स्पेस. अगर 2 रोज बचती हैं, 2 इंडिपेंडेंट, तो आपके पास इन्हीं के लिए कॉम्बिनेशन से जो स्पेस बनेगी वो रो स्पेस एटसेट्रा. यही हिसाब कॉलम स्पेस का है. अगर मैं इसके कोई कॉलम वेक्टर लूं, तो इसका कॉलम वेक्टर जो है विल बी ऑफ टाइप 2 3 4 -2. Now, as there are 4 columns, 4 rows, so a column will contain 4 elements. So ये रो स्पेस जो भी आएगी इस केस के अंदर, that will be subset of R3. क्योंकि सबसेट ऑफ R3 है, तो इसका मतलब है इस मैट्रिक्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज कितनी होंगी? क्योंकि रो स्पेस जो भी आएगी वो R3 का सबसेट होगी. तो कितनी रोज लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकती हैं इस मैट्रिक्स में? सो मैक्सिमम 2 होंगी. 3 3. R3 का सबसेट है ना, तो 3 हाँ, या 3 मैक्सिमम. क्योंकि रो रैंक और कॉलम रैंक सेम होता है, रो स्पेस और कॉलम स्पेस की डायमेंशन सेम होती है. तो क्योंकि कॉलम स्पेस जो है 3 मैट्रिक्स में 3 ही कॉलम है, तो कॉलम स्पेस 3 डायमेंशन से ज़्यादा नहीं हो सकती. तो जब कॉलम लोगे तो इस फॉर्म के होंगे और 4 एलिमेंट्स के होंगे. कितने कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंस हो सकते हैं? 1. तो 1 कॉलम, एंड दैट मीन्स कॉलम स्पेस जो है that is 1 dimension. But it will be a subset of R4 because each column has 4 elements. Linear independent 2 हो सकते हैं,
in which case the column space will be 2-dimensional. It's still a subset of R4. तो चूंकि 3 ही कॉलम है, 3 ही मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हो सकते हैं, लिहाजा कॉलम स्पेस की मैक्सिमम डायमेंशन 3 हो सकती है और रो स्पेस की भी मैक्सिमम डायमेंशन 3 हो सकती है. ये जो डायमेंशन है दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द रैंक ऑफ ए, चाहे कॉलम रैंक निकालो चाहे रो रैंक निकालो, दैट इज द डायमेंशन ऑफ रो स्पेस as well as column space. And when you want to find the null space, you have to make this system equation which is homogeneous. So इसकी जो solution space आएगी, solution space is null space of A. अच्छा जी, अगर रो स्पेस की डायमेंशन 1 आई है तो नल स्पेस की डायमेंशन कितनी आएगी? रिमेंबर, रो स्पेस is a subset of R3. सर मैक्सिमम 3 होगी सर. मैक्सिमम 3 होगी, चलिए मान लिया. नहीं मान रहा. 4 रोज है ना सर. देखिए रो स्पेस जो है उसकी डायमेंशन या कॉलम स्पेस की जो डायमेंशन है वो 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती इस केस में. तो नल स्पेस की डायमेंशन कम से कम कितनी होगी? कम से रो कम एक स्पेस, होगी ना सर. हाँ कम से कम 1 होगी, कम से कम 0 भी हो सकती है. अच्छा, डायमेंशन ऑफ रो स्पेस प्लस डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, इसके बारे में हमने एक फॉर्मूला लिखा था जिसको डायमेंशन थ्योरम कहा है किताब में. The number of columns. नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए. अब अगर डायमेंशन ऑफ रो स्पेस 1 है, कॉलम 3 है, तो नल स्पेस की डायमेंशन कितनी हुई? 2 होगी सर. 2. डायमेंशन ऑफ रो स्पेस 2 हो सकती है, कॉलम अभी भी 3 है, इसी की बात कर रहा हूँ. व्हाट विल द डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस? 1. रो स्पेस की डायमेंशन 3 हो सकती है, नंबर ऑफ कॉलम्स आर स्टिल 3. व्हाट विल द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस? 0. ये वो केस होगा जब इसका सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा, यानी 0 वेक्टर. 0 वेक्टर का सेट, सिर्फ ऐसा सेट जिसमें सिर्फ 0 वेक्टर हो, वो वेक्टर स्पेस तो है लेकिन उसकी डायमेंशन 0 है. तो ये डायमेंशन थ्योरम जो है associated with the problem of finding out row space, column space and null space of a given matrix, और उससे associated जो rank and nullity, डायमेंशन ऑफ रो स्पेस और कॉलम स्पेस को हम रैंक कहते हैं और डायमेंशन ऑफ नल स्पेस को हम नलिटी कहते हैं. तो रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज द बेसिक डायमेंशन थ्योरम. एंड इसके साथ आपको इस तरह के रिजल्ट ध्यान में रहने चाहिए. दिस इज द डायमेंशन थ्योरम. जैसे ही आपके सामने कोई सवाल आए, फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन इज व्हाट, कितनी रोज है इसमें? 4. कितने कॉलम है? 6. तो अब अगर मैं रैंक और नलिटी की बात करूं तो दे शुड एड अप टू 6. रो स्पेस की डायमेंशन 1 हो सकती है, तो null space in that case will be 5 dimension. रो स्पेस की डायमेंशन 2 हो सकती है,
null space की dimension in that case will be 4. null space row space या column space की dimension 3 हो सकती है, तो ये 3 होगी. Maximum dimension of the row space in this case is the number of rows there are. इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती. इसका मतलब है अगर इस सवाल को सॉल्व करोगे तुम तो तुम्हारे पास रैंक मैक्सिमम 4 आएगा. 4 ही रोज हैं, चारों नॉन जीरो हो सकती हैं इन द इकोलॉन फॉर्म. इसका मतलब चारों लीनियरली इंडिपेंडेंट होती हैं, लिहाजा वो स्पेस को स्पैन कर रही हैं. तो जब तुम नल स्पेस निकालोगे तो उसमें 2 फ्री पैरामीटर जरूर आएंगे. तो इस तरह की चीजें जो हैं, दीज आर सर ये रो स्पेस और रिंग सेम ही है ना? रो स्पेस and dimension of Same. row space and rank is same. What you have just asked me is that dimension of row space is equal to rank of A, which is also equal to the dimension of column space. Right? अच्छा, इसी सिचुएशन से हम देखते हैं कि हम लिख सकते हैं कि नल स्पेस या नलिटी is equal to number of columns minus rank, or rank is equal to number of columns minus nullity, dimension of null space. So that's it, and I was talking about linear transformations last time, and now I'll complete this. But before I complete this, let me write down distribution of questions. One from chapter 1, one from, or it may be possible 1.5. Chapter 2, 1.5 from chapter 3, two from chapter 4. A total of 6 questions. जब मैंने यहाँ 1.5 लिखा तो आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions. So one complete question for chapter 1, and I can mix half a question of chapter 1 with half a question of chapter 2, and half a question of chapter 2 can be mixed with half a question of chapter 2. इसका मतलब है हर क्वेश्चन में एटलीस्ट 2 पार्ट्स होंगे. So that makes a total of 12 questions. And I think we have agreed about the time from 4:30 to 6:30 working time, and submission time हमने क्या कहा था, 7:30 maximum. सर ये 7:30 तक रखते हैं सर. कब था? आज था. So that's a last topic, which is an easier topic. Last time I was talking about linear transformations. Sir, The
सर मिड टर्म फ्राइडे को है, फ्राइडेज को हमारी 5:30 से 7 तक दूसरी क्लास होती है। So I can conduct the examination after 8 or 9. सर मतलब अफ्तारी के बाद। अरे भाई बात सुनो, क्यों ना संडे को कर लें। वो बेटर रहेगा क्योंकि फिर फ्राइडे को इफ्तारी हो जाएगी, लेट हो जाएगा। तो संडे यही कर issue ले, है। मॉर्निंग टाइम में कर लें, लाइक 10 to Sunday 12 इस morning तरह का टाइम। नॉट नहीं, संडे मॉर्निंग नहीं होगा, संडे होगा भी तो आफ्टरनून होगा, लाइक 2 to 4। ठीक है सर, 2 to अच्छा, 4 वो सही है, वो बेटर है। Sunday, then it will be one day after. 19th होगा। नहीं सर, Okay. संडे 19th है। Oh, Okay. 18th है। Sunday is 18th. So let us 2 add days। one more thing to this. Uh, Sunday, 19/4/21, 2 p.m. to 4 p.m. ठीक है। सर 5:30। 18th होगा, 18th अप्रैल। आज क्या दिन है? आज सैटरडे है ना? हाँ, 18th। आई थिंक दैट इज बेटर। और इससे एक चीज़ ये भी हो गई कि I will continue with my teaching next Friday and Saturday. Okay. हाँ जी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में मैं आपको सिर्फ इस वक्त इतनी सी चीज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जब मुझे किसी इस वेक्टर स्पेस से किसी और वेक्टर स्पेस में ट्रांसफॉर्म करना है थ्रू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकाला जाता है। तो वी आर यूजुअली गिवन transformation defined as, for example, I consider R2 to R3. That means कि अगर W belongs to R3 and V belongs to R2, I want W is equal to the image under the transformation. And we usually define such transformation as this: x1, y1, z1, the output in R3 is equal to each x1, y1, z1 as linear functions of vectors in V. So I may write 2v1 minus, यानी vector in V जो है वो that is sort of v1 comma v2. So 2v1 minus 3v2, v1 plus 5v2, 6v1 minus 3v2. हमें पता है कि यहाँ स्टैंडर्ड बेसिस ये हैं, तो हम ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं इस तरह से कि व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड बेसिस। स्टैंडर्ड बेसिस का मतलब है v1 v2। यानी मैं कुछ नोटेशन में गड़बड़ कर रहा हूँ, नहीं गड़बड़ नहीं कर रहा। डोमेन स्पेस जो है
उसमें एक वेक्टर के कंपोनेंट्स x1 y1 लिखने के बजाय हमने v1 v2 लिख दिया। आप x1 y1 से ज़्यादा अगर फेमिलियर हैं तो याद रहे कि हमने x1 y1 z1 जो है वो इमेज स्पेस के लिए इस्तेमाल किया। एनीवेज, so we see that how I will get the output when v1 is 1 and v2 is 0. That is first uh, standard basis of R2. So we know that this is 1, this is 0, so 2 comma 1 plus 5 0, 6 into 1 minus 3 into 0, so 6. And this vector written in terms of the standard basis of W is 2 times 1 0 0 plus 1 times 0 1 0 plus 6 times 0 0 1, and that gives me something. So W or the image of first standard basis, which is E1, and now I'm going to consider second standard basis, and that transforms according to this formula, where now first component is 0 and second component 1. First component 0, second component 1, so minus 3, 0 plus 5, 0 minus 3. So that makes it minus 3, 1 0 0 plus 5, 0 1 0 minus 3 times 0 0 1. Now यहाँ जो हम देख रहे हैं कि W यानी R3 के जो स्टैंडर्ड बेसिस हैं उसके हिसाब से कोऑर्डिनेट ऑफ दिस इमेज is 2 1 6. Coordinates of this image minus 3 5 minus 3. Now what is my domain space? My domain space is R2. Can I work out an image of R2 using this matrix? Yes or no? I think yes, sir. Row into column. Is it allowed in this case? 2 into 3. No, you can't. No, sir. So that means matrix A, which actually transforms vectors from R2 to R3, is the transpose of this. 2 minus 3, 1 5 and 6 minus 3. This is the only trick involved in this. Otherwise, आपने domain space के standard vectors जो हैं basis vectors उनकी images ली under the given transformation. This is the formula for the transformation. मैं उसको सिर्फ TA लिखूं या TA लिखूं. T is the name of the transformation, and A is the matrix that results out of this transformation that we developed. Now I can write down this. And what is this? First row, first column. 2x minus 3y. 2x minus 3y, x plus X 5y, 5y. 6x minus 3y. In fact, elements of this column are nothing but these linear functions. Oh. So we can say that I can write down matrix A directly reading elements from here. कैसे? 2 1 2 1 6 2 1 6. पहले component की coefficient. minus 3 And minus 3 5 minus 3. So this is the matrix of transformation. अच्छा भाई. Let us test it. Now what is the meaning of testing it? Meaning of testing it is that I choose some vector in R2. Now, and select particular values 4 11. This means transformation of U
should be obtained through pre-multiplying the given vector, which will be written in column form, by the transformation. This is the transformation matrix or standard matrix of transformation. I should standard matrix of transformation. So 6 minus 3 into 411, and my result is 8 minus 33 minus 23, 4 plus 55, 59, 24 minus 33 is 9. Go back here. V1 is 4, V2 is 11. V1 is 4, V2 is 11. V1 is 4, V2 is 11. So चाहे मैं ट्रांसफॉर्मेशन का जो फॉर्मूला लीनियर फंक्शंस दिए हैं मुझे उनको बराह रास्त इस्तेमाल करूँ इमेज निकालने के लिए, चाहे किसी भी वेक्टर को जो कि R2 का यानी डोमेन स्पेस का है उसको इस ट्रांसफॉर्मेशन स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्री मल्टीप्लाई करूँ, I'll get the same result. 4 into 2, 8 minus 33 25 होगा, minus 25 होगा. minus 25. 4 plus 55 is 59, and 24 minus 33 is 24 minus 33 is minus 9. ठीक है. अच्छा. This is it, and the related questions that I'll just discuss in few minutes. सवाल ये Excuse me, sir. जी. सर ये जो मैथमेटिकली हम कर रहे हैं ये तो समझ आ रही है, लेकिन इसके बैकग्राउंड मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम ये जो कर रहे हैं इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन या हम एक्चुअली क्या करना चाह रहे हैं. व्हाई आर वी डूइंग दिस? एंड Okay. I have a vector space R5 arising from the study of any field, whatever I'm studying. And there is another space R10. The physicists, some physicists claim that multiverse is comprehensible in say 60 dimensions or something like that. Wormholes are in say 10 dimensions or 15 dimensions. अब मुझे भी खुद पूरी तरह से नहीं पता कि what actually they mean. But we have practical situations in medicine. ये dimensions का इस्तेमाल जो है वो बहुत frequently होने लगा है to represent the state of body parts or body as a whole. So if I'm exploring some phenomena related to heart, and I want different parameters which are independent of each other, in terms of which I can represent the condition of heart muscle strength, or average cross-sectional area of arteries, and blah blah. So heart muscle strength may be independent of average radius of the artery and some other parameters. So इन सब की quantities को मैं मिला के एक space बनाता हूँ. And then I want to find correlation between different spaces, how they are correlated to each other. If there is a correlation, then I may be interested in कि भाई अगर ये state है U, which is a 5-dimensional element, then how it transforms into a 10-dimensional element, or how it is related to. So हमने introduce किया था
transformation code as a function from one vector space to another vector space. In fact, we are doing some linear algebra of calculus. आपने फंक्शन पढ़ने शुरू किए R to R, functions of single variable, single valued functions of a single value. Then you went on to study R square to R, single valued functions of two unknowns or two variables, multivariate functions, R3 to R. और कैलकुलस की किताबों में ये चीज़ इंट्रोड्यूस होती है कि व्हाट अबाउट अ फंक्शन R2 to R3. So in the beginning I started ये तो blank pages का part है. I should go to the linear transformation page. I introduce this as a function from one space to another space, and functions means relations between domain and codomain. तो हम ऐसे functions डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, ये आउटपुट वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस ऑफ n वेरिएबल्स. तो ये बैकग्राउंड है इस मैथमेटिक्स का. एप्लीकेशन एरिया मल्टीवेरिएट कैलकुलस भरा पड़ा हुआ है एप्लीकेशन एरिया से. मेरी भी मालूमात इतनी नहीं है कि मैं आपको हर चीज़ बता सकूँ. हाँ, if you read books, you find different examples where you have practical situations. मैं भी असल में दरमियाना आदमी हूँ, अप्लाइड मैथमेटिक्स और प्योर मैथमेटिक्स के दरमियान का. तो अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले जो हैं उनको बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं अगर उन्होंने मुख्तलिफ एरियाज की स्टडी की हो. फॉर एग्जांपल वो अप्लाइड मैथमेटिक्स जो इकोनॉमिक्स में काम कर रहे हैं, वो अप्लाइड मैथमेटिक्स जो फिजिक्स में काम कर रहे हैं. मैं थोड़ा बहुत फिजिक्स में काम किया तो मुझे थोड़ी बहुत एग्जाम्पल्स वहाँ से पता है. वो लोग जो इवन जो आजकल जो जैसे मैंने कहा ना कि इकोनॉमिक्स में काम कर रहा है, एंड इकोनॉमिक्स इज क्लोजली रिलेटेड टू पॉलिटिक्स नाउ. देयर इज स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स. तो पॉलिटिकल साइंस जो है उसके अंदर भी इस्तेमाल हो रही है. एनीवेज, I don't want to go high-fi, and I'm not myself high-fi. तो हमने रिस्ट्रिक्ट किया अपनी स्टडी को कि फंक्शन तो किसी भी तरह का हो सकता है n वेरिएबल्स का. हम सिर्फ लीनियर फंक्शंस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो लीनियर अलजेब्रा है एंड वी टॉक अबाउट लीनियर फंक्शंस. अब हम देखते हैं कि एक स्पेस से दूसरी स्पेस में जब मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा वेक्टर्स को थ्रू लीनियर फंक्शंस, then I have a tool that is linear matrix of linear transformation, and we are learning how to use them. मैंने ये कहा कि I terminate my discussion of the chapter 4 at this point, जिसमें कि मैंने आपसे ये डिस्कस किया कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपको डिफाइन करके दे दी. मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए आपने क्या करना है कि जो डोमेन स्पेस है उसके स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स की इमेज निकालनी है अंडर द गिवन फंक्शन, लीनियर फंक्शन फ्रॉम R4 to R3. ये इमेजेस हमने इसके ज़रिए कैलकुलेट की. अब जो इमेजेस आ गई हैं हमारे पास, दे आर इन R3, और R3 के स्टैंडर्ड बेसिस में इनको लिखा. तो स्टैंडर्ड बेसिस के कोफिशिएंट से एक मैट्रिक्स बना. Now this matrix, when applied on standard basis of image, give you these images, which are 4 in total because it is taking vectors from R. बल्कि यहाँ पे तो हमने कुछ उल्टा काम किया हुआ है ना. हमने R4 के एलिमेंट्स लिए, उनको हमने R3 के एलिमेंट्स में कन्वर्ट किया. तो R3 के एलिमेंट्स इज द इमेज. लेकिन जो कुछ हमें हासिल हुआ है
हम इसको स्टैंडर्ड मैट्रिक्स नहीं कह रहे, बिकॉज वी डोंट हैव टू गो फ्रॉम R3 to R4, वी हैव टू गो फ्रॉम R4 to R3, एंड टू मेक इट इफेक्टिव हम ये जो मैट्रिक्स हमें यहाँ से हुआ इसका ट्रांसपोज लिखा, and that transpose takes elements from R4 to R3. ये जो प्रोसेस हमने डिस्कस किया है, this is very simple, and geometrically let us see some example. मैं किसी पॉइंट को रिफ्लेक्ट करना चाहता हूँ about y-axis. From your earlier studies of geometry, you know that the reflection of point in first quadrant in R2 is a point in second quadrant. अगर point के coordinates x, y हैं, तो image या reflection के coordinates -x, -y हैं. इसका मतलब transformation is this: x, y goes into -x, y. अब स्टैंडर्ड जो बेसिस हैं उनकी इमेजेस कंसीडर करें अंडर दिस फार्मूला. सो x is equal to 1, so there is -1, y is equal to 0 and there is 0. इसी तरह दूसरे स्टैंडर्ड बेसिस की इमेज निकालें, x is equal to 0, so 0, y is equal to 1, so y, and put these vectors in the column and you get the standard matrix. Now this standard matrix is representing the geometrical process of reflection of a point about y-axis. Similarly, reflection about x-axis and the standard matrix of transformation is this, obtained in exactly the same way that we discussed. Reflection about the line y is equal to x and reflection about y is equal to x line का मतलब ये होता है कि xy coordinate को yx कर दो. So transformation of xy into yx. Using the standard basis, unki transformation, and this is the resulting standard matrix for obtaining reflection of a point about y is equal to x. So these are some simple ट्रांसफॉर्मेशन विच आर रियली नॉट ट्रांसफॉर्मेशन. हमने कहा था कि अगर एक स्पेस से उसी स्पेस में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो फिर हम इसको लीनियर ऑपरेटर कहते हैं. So let us look at the linear operators in R3. एंड जैसे जैसे डायमेंशन बढ़ेगी हमारे पास काम भी बढ़ जाएंगे. यहाँ पे हमने रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस का कंसीडर ही नहीं किया. अगर मैं रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस करूँ तो दैट विल बी डिफाइंड एज व्हाट? If you take a reflection of a point x, y, z about x axis, क्या तब्दीली आएगी? क्या x coordinate change होगा? No, x coordinate will not. y change होगा sir. Y change होगा by what? -9 से -y. What about z? ये x, y, z है और रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस ले रहे हैं. तो रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस का मतलब है यहाँ से पॉइंट उठ के यहाँ कहीं जा रहा है, तो उसका x यानी yz प्लेन से डिस्टेंस सेम रहेगा. y भी नेगेटिव हो गया और z भी नेगेटिव हो गया. इसी तरह रिफ्लेक्शन अबाउट, एंड यू कैन राइट डाउन द कॉरस्पॉन्डिंग standard matrix using this tool. So ry of x, y, z, that means reflection about y axis. तो y चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, लेकिन x का साइन और y का z का साइन चेंज हो जाएगा, एटसेट्रा. सो रिफ्लेक्शंस इन R3 हमने यहाँ पे अबाउट एक्सिस नहीं लिखे, लेकिन xy प्लेन लिखे हुए हैं. किताब में जो दिए हैं उसमें xy प्लेन कहा है. अगर xy प्लेन पे रिफ्लेक्शन ले रहे हो तो xy प्लेन के ऊपर पॉइंट है तो नीचे चला जाएगा, नीचे पॉइंट है तो ऊपर चला जाएगा. तो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स इज दिस. लुकिंग एट दिस स्टैंडर्ड मैट्रिक्स, जिसमें हमने क्या कहा था, ये एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन. तो ये जो मैंने अभी ये क्या बनाया है, कैन एनीबॉडी सजेस्ट मी द standard matrix of transformation just by looking at
easy results, inspection, ये सारा काम किए बगैर जब मैंने y एक्सिस पे रिफ्लेक्शन लिया था तो x का साइन चेंज हो गया था, y दिख रहा था। जब मैंने y x पे रिफ्लेक्शन लिया तो x एज इट इज रहा और y का साइन चेंज हो गया। अब मैं यहाँ x एक्सिस पे रिफ्लेक्शन ले रहा हूँ तो क्या चेंज नहीं होगा और क्या चेंज हो जाएगा? y और z चेंज हो जाएंगे सर, माइनस से आएगा, -1 बाकी एक सेम ही रहेगा। -1. So if you understand this, how this standard matrix is obtained from this physical process, you can write down the reflection matrix for x-axis, reflection matrix for y-axis, and reflection matrix for z-axis. So ये जो पेज है ये मैंने फाइल शेयर कर दी है। Reflections about coordinate planes. We can have reflection about origin, and reflection about origin, if I write down reflection about origin, let me write down it as R0, X, Y, Z. So what do you suggest? अगर मैं origin के about reflection लूँ तो क्या होगा? क्या मैंने 2 dimension में origin के about reflection लिया? नहीं, हमने y axis पे reflection लिया, x axis पे लिया, y is equal to x पे लिया. What about reflection about origin? When you take reflection about origin, अगर point यहाँ पे है तो उसका reflection एक लाइन खींचिए पॉइंट से origin तक और उतने डिस्टेंस तक दूसरी तरफ ले जाइए. So x will become minus x and y will become minus y. So -1 0 0 -1. So you can write down the corresponding standard matrix of transformation for reflection about origin. इसको हम symmetry about origin भी कह सकते हैं. Anyways, projection operator. I want the projection of xy onto the x-axis. We know that it is x0, and the corresponding standard matrix is this. On the y-axis, and इस पे projection तुम लगा सकते हो वो वाला जो हमने projection vector इस्तेमाल किया था ना, projection of vector OP in the direction of x-axis, that is I hat, and that is I hat dot OP dot divided by हम किसकी डायरेक्शन में ले रहे हैं? The norm of I. So 1, 0 dot x y divided by norm of this 1 into 1 0. So what's the result? This dot gives you x 1 0. So x, 0. So this is obtained. तो जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर हमने पढ़ा था वो यहाँ भी इस्तेमाल किया जा सकता है. So this transformation matrix is this transformation is defined as this, as projection on x-axis and as projection on y-axis in 2 dimensions, as the corresponding matrices are these. Orthogonal projection on the xy plane. xy plane पे तुम projection ले रहे हो, तो जिस तरह मैंने अभी ये projection vector का फार्मूला इस्तेमाल करके ये ट्रांसफॉर्मेशन हासिल की है, इसी तरह मैं उसी का प्रोजेक्शन फार्मूला इस्तेमाल करके यहाँ भी ये कर सकता हूँ. लेकिन किस डायरेक्शन में ले रहा हूँ मैं, दैट डायरेक्शन इज समथिंग ट्रिकी टू रिप्रेजेंट, बिकॉज दिस विल बी एन आर्बिट्री वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस. तो मैं इसको कर सकता हूँ कि आर्बिट्री वेक्टर एस कॉमा 0, तो मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्शन ऑपरेटर इस्तेमाल कर दिया, लिहाजा मैं इसमें प्रोजेक्शन ऑपरेटर की तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं. एनीवेज, अगर आप प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन ले रहे हैं, दैट मीन्स यू आर चॉपिंग ऑफ द जेड कोऑर्डिनेट, बिकॉज जब तुम इसको एक्स वाई प्लेन पे लाओगे तो जेड कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा. इसको एक्स जेड प्लेन पे ले जाओगे तो वाई 0 हो जाएगा. अगर इसको वाई जेड प्लेन ले जाओगे तो एक्स 0 हो जाएगा. अकॉर्डिंगली हम स्टैंडर्ड जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह के स्टैंडर्ड मैट्रिक्स आ रहे हैं, इसमें ऑन एक्स वाई प्लेन लेना है तो z खत्म कर दिया, ऑन एक्स जेड प्लेन लेना है तो y खत्म कर दिया, एक्स वाई जेड प्लेन लेना है तो x प्लेन. यस, दिस इज मोर इंटरेस्टिंग, रोटेशन थ्रू एन एंगल.
इन फार्मूले की डेरिवेशन इज इंटरेस्टिंग, एंड इन फार्मूले की डेरिवेशन जो है दैट इज डन इन कैलकुलस कोर्सेज, जहाँ आपने शायद रोटेशन ऑफ एलिप्सिस पैराबोलास पढ़े हों। बहरहाल when I rotate a point or the position vector of a point through an angle theta in the direction of y-axis or in the direction positive direction, तो हमारे पास जो नए कोऑर्डिनेट्स आते हैं W1, W2, वो इस तरह से लिखे जाते हैं. We can prove it, but this proof is done in the calculus courses. So इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो W1, W2 vector is obtained by matrix cos theta minus sin theta, matrix sin theta cos theta into xy. This is standard matrix, works like this. अगर मैं 3 डायमेंशन में चला जाऊँ और वहाँ रोटेशन मैट्रिसेस देखूँ तो रोटेशन अबाउट x एक्सिस we have this standard matrix, rotation about y axis देखिए cos theta sin theta. अगर x एक्सिस पे ले रहे हैं तो diagonal element corresponding to x is 1 और जो cos theta sin theta वो कहाँ आ रहे हैं, that is important. अगर मैं y एक्सिस पे ले रहा हूँ तो y के कॉलम में जो आइडेंटिटी लुकिंग है उसका लीडिंग एलिमेंट 1 है, बाकी cos theta sin theta किस तरह से एक्सचेंज हो रहे हैं, that is, and we can derive all these, but here the derivation is not important, it's the understanding of the standard matrices of rotation. Then there are some other physical processes like contraction. The vector को आप contract कर दें. Dilation. The contraction is in fact taken in the form of squeezing the vector, and dilation is taken as k less than 1. Oh, yes, contraction. ये छोटा हो गया. k greater than 1, vector बड़ा हो. Now it's more interesting कि अगर हम इसको किसी फिगर पे इस्तेमाल करें, the contraction will squeeze the figure and dilation will enlarge the figure. The standard matrix is k0, 0, k. हर पॉइंट इस मैट्रिक्स इस फिगर के, अगर ये स्क्वायर फिगर है, इसके हर मैट्रिक्स पॉइंट को इससे मल्टीप्लाई करूँ तो इस स्क्वायर का हर पॉइंट आ जाएगा. Contraction in 3 space, the same thing. I think I terminate discussion at this point. I will discuss these and go through some problems in exercise 4.9 in the next class, क्योंकि अब हम 9 के बजाय we are taking exam on sorry 16 के बजाय हम 18 को ले रहे हैं पेपर, तो 16 को I'll consider more examples from linear transformation and its exercises, and then next Saturday जो है वो मैं एक छोटा सा प्रैक्टिस क्विज लूँगा और 4th चैप्टर से ही होगा वो क्विज, 4th चैप्टर में से. सर ये 4.8 तक होगा मतलब 4.9 तक. ठीक है. I think I stop at this point today, and hope most of the people watched the recorded lecture. I'm stopping the recording here. I'll discuss more